Hey guys, this is the Leonardo Cap and welcome to my channel. If you are new to my channel, please do subscribe and hit the button, hit the bell icon because it's important, that's old fashioned way. Okay, fine. In this video, we will cover on rotational dynamics and today we are going to cover some important topic which is called angular momentum. Angular momentum is so much important to understand the rotational dynamics. It's not just simply mathematics, but angular momentum has a greatest concept and greatest history, and we will explore about it. Previously, we have talked about equation of motion which involved in rotational mechanics, like theta is theta naught omega t plus half alpha a t square. The derivation of this equation, which I have done in my previous video, I have given the link in description below or I button, just click on there. Now I have unlocked every feature, how these equations are derived, what are the meaning of those parameters and so on, but I will give you some brief idea here also, so don't worry. Is theta naught omega t, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, when something involves in rotations we have few parameters like theta, omega and alpha, which is similar to x, the position, the velocity and the acceleration. Okay, now alpha is defined as the rate of change in angular velocity over the rate of change in angular velocity, and the angular velocity is nothing but the rate of change in angular position or angular displacement. Well, if we want to find the relation between these linear and angular, we know if any particle is moving in some circular orbit, okay, and there is maybe some distance r from the center, so we can easily say v is equal to r times omega. And this velocity is actually acting on this tangential side, so this velocity is nothing but a tangential velocity. Now I have already told you that if this tangential velocity is constant, then still no force is applying. Okay, suppose there is no any forces applying, this tangential velocity is constant, but this speed is constant, but this speed's direction keeps on changing because of this trajectory. The trajectory in maybe xy plane, this is your x and this is your y. Okay, so velocity's direction is not constant, its magnitude is constant, therefore it will have some acceleration. Okay, the acceleration we call is AR, the centripetal acceleration, which is nothing but v square by r, so it is nothing but r omega square. Okay, so when we are talking about something moving in circular thing, circular object or circular path, what we have two accelerations. One is tangential acceleration and another is the radial acceleration. Radial acceleration is defined like here. A radial acceleration is always there if an object is moving on circular track, either it's in any influence of gravity or any influence of other external force or not. But tangential acceleration produces when you have some external force, and at is nothing but simply dv over dt. Now this guy, now see this, we can write here like d over dt r times omega. Now since r is a constant, then this omega over dt, and therefore we got r alpha. So the tangential acceleration for any particle which is moving on circular track, now this acceleration because of some external force will have acceleration r times alpha. So we have this tangential velocity, the radial acceleration and the tangential acceleration. तो जब हमने ये चीज़ों को जाना कि कौन से सिचुएशन में क्या चीज़ आता है, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। क्या कि जब हमने देखा था लीनियर मोशन को, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्सेस हैविंग द ट्रांसलेशन मोशन, कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपने कोई एक फोर्स लगाया और आप क्या करते, एक्सेलरेशन इसमें होता है, फोर्स लगाया, तो उसको हम कहते थे F इज इक्वल टू m टाइम्स a।
सपोज अगर उसमें कोई फोर्स ना लगे, ओके, मे बी सम स्पीड से वो क्या करना जा रहा है, तो उसमें क्या थी हमारी लीनियर मोमेंटम m टाइम्स v। वेरी गुड, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, वेरी गुड, आपकी ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी vt। चलो मैंने ये कहा कि ठीक है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, फॉर द मोमेंट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ये घूम रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने पिछली बार बताया था कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा क्या है, रिजिड ऑब्जेक्ट है। मीन्स के जो भी पार्टिकल से वो बना है वो उसकी अपनी क्या होगी, फिक्स्ड पोजीशन होगी। तो जिस वेलोसिटी से ये पूरा ऑब्जेक्ट घूमेगा उसी वेलोसिटी से ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। वेरी गुड, मैंने मान लिया कि इस पे कोई फोर्स अब नहीं लग रहा है, द फोर्स इज इक्वल टू 0, और बस मैंने इसको घुमा दिया है, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, F इज इक्वल टू 0। तो जनरली अगर मैं इसका मोमेंटम देखूं तो इसका मोमेंटम किस तरह का होगा, इसका जो मोमेंटम होगा जनरली, ये जो था मेरा लीनियर मोमेंटम था। क्या था लीनियर मोमेंटम, मीन्स के पोजीशन में जो चेंज आ रहा है dr/dt। ये ऑब्जेक्ट यहां था, कुछ देर के बाद यहां गया, बट इसमें क्या है कि ये पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो चेंज पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, बट किस में हो रहा है, एंगल में चेंज हो रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसमें मैंने वेलोसिटी दिया, ऑब्वियसली मोमेंटम तो होगा, बट ये जो पोजीशन है किसी पार्टिकल का वो क्या कर रही है, एंगल्स के साथ चेंज हो रही है। लीनियर मोमेंटम है प्लस ये जो पोजीशन है पार्टिकल का वो क्या कर रही है, एंगल के साथ चेंज हो रहा है। और हम उसके एंगल को कहां से मेजर करते हैं, सपोज मैंने कोई एक एक्सिस ले लिया, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, वहां से मैं देख रहा हूं, मे बी ये कोई एक एक्सिस है, मे बी जेड एक्सिस है, और मेरा ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मे बी एक्स है, ये कोऑर्डिनेट है। तो इस पार्टिकल के लिए मेरा क्या होगा, ओरिजिन यहां है, मैं इस ओरिजिन को यहां भी डाल सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो इस पार्टिकल को मेरे को ट्रैक करने के लिए, इसके मोशन को ट्रैक करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक ओरिजिन चाहिए, जहां से मैं क्या डिटरमाइन करूंगा, एंगल को डिटरमाइन करूंगा। बिकॉज इस पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है प्लस इसमें क्या हो रही है, एंगल्स में चेंज हो रही है। जब मेरे पास इस तरह का सिनारियो आएगा तो हम ये कहेंगे कि these have, if any object is moving with some constant velocity and there is no any force, we can say there is no any external force, we can say it has some angular momentum, and this angular momentum is defined this way. हमारे ट्रांसलेशन मोशन में क्या था, P इज इक्वल टू mv था। नाउ अगर ऑब्जेक्ट अगर हमें रोटेट करेगी तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या डिफाइन होगा, L इज इक्वल टू, L मीन्स एंगुलर मोमेंटम, R मीन्स कि जो भी आपने कोऑर्डिनेट पहले मानना है, क्या कौन सी कोऑर्डिनेट है, एंड देन क्रॉस मोमेंटम। अब तक के पार्ट तक, यानी कि जब तक हमने ट्रांसलेशन मोशन की बात की, अब तक हमने वेक्टर क्वांटिटीज की बात की। जैसे फोर्स हमारा क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी था, बट कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। जब हमने वर्क का बात किया था तो वहां भी क्या था, एक हमारे पास वेक्टर था, बट प्रोडक्ट क्या था, स्केलर प्रोडक्ट था, F डॉट डी। बट टिल नाउ वी हैव नेवर एवर रियलाइज द क्रॉस प्रोडक्ट। बट पहली बार जब भी हम जिस तरह से हम रोटेशंस में आए, वहां पे मेरे को क्या मिल गया, दिस क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया मेरे को। एंड नाउ दिस मेक्स इंटरेस्टिंग। अब हम एंगुलर मोमेंटम को डिग डीपर करते हैं। हमने तो ये देखा कि एंगुलर मोमेंटम आएगा, बट एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्या सिर्फ इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि L इज इक्वल टू R क्रॉस P, या इसमें कुछ बहुत ही खास बात है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि एंगुलर मोमेंटम की बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है। ये ऐसा नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम में R क्रॉस P निकाल लिया बस हो गया, नो, इट्स नॉट सिंपल दैट इट इज। अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में जाओ, सॉरी हाइड्रोजन एटम में जाओ, वहां पे इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, वहां पे एंगुलर मोमेंटम है।
सन और अर्थ के सिस्टम को देख लो, वहां भी एंगुलर मोमेंटम है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है वहां पे क्या होती है, आपकी एंगुलर मोमेंटम होती है। वेरी गुड। बट एंगुलर मोमेंटम की जो खास बात है वो है क्या? तो अगर एंगुलर मोमेंटम की हमें खास बात समझनी है तो हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। इसके स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहली बात, जब हम लीनियर मोशन में थे तो वहां पे जो हमारा सिर्फ p था वो क्या था, m इंटू dr/dt, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी पाथ पे और मेरा यहां कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मे बी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड है, तो अगर मैं यहां हूं, इस ओरिजिन पे हूं, तो मैं स्टिल गेट करूंगा यहां 5 मीटर्स पर सेकेंड। अगर मैं यहां से यहां आ गया फिर भी मैं देखूंगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहां कर लेता हूं तो फिर भी मैं देख रहा हूं 5 मीटर्स पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये जो शिफ्टिंग होती है वो क्या होती है, सिर्फ आपने क्या किया, मे बी यहां पर 0 था तो यहां पे आपने 0 + 5 मीटर्स की तरफ चले गए। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो नया पैरामीटर है आपने जो यहां आया, मे बी x टैक्स पोजीशन पे आया, तो ये पहला पोजीशन था आपका x, प्लस आपको ये कांस्टेंट डिस्टेंस आगे बढ़े। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे आया। तो मैं इसे अगर डेरिवेटिव करूं, dx/dt इज इक्वल टू dx/dt एंड प्लस da/dt। नाउ सिंस dA एक क्वांटिटी है, एक नंबर है जिसकी वजह से आप जा रहे हो, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, देन इट बिकम्स 0। तो जो भी नया जो वेलोसिटी होगा, जो पुराना वेलोसिटी, दोनों क्या होंगे, एनालोगस होंगे। तो मोमेंटम इज नथिंग बट dm dr/dt। ठीक है, वेरी गुड। बट यहां आप देखो, यहां पे क्या खेल है। जब हमने एंगुलर मोमेंटम को देखा तो उसमें परिस्थिति तो बहुत अच्छी थी कि p तो ठीक है, p चेंज नहीं होगा अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इधर से यहां ले जाऊं तो। बट इसमें क्या है, ये r, ये जो पोजीशन की जो पार्टिकल है, मीन्स कि अगर मैं डिसाइड कहां से करूं कि हमारा जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उसकी पोजीशन अब डिपेंडेंट करती है, उसकी पोजीशन मेरी आ गई, यहां पे कोई रेट चेंज नहीं है। अगर मैं इस r को बनाता हूं r + a, तो ये पूरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो मेरा चेंज हो जाएगा, r × a × p, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। बिकॉज ये चेंज हो जाएगा बिकॉज यहां पर कोई टाइम डेरिवेटिव नहीं है जो इस कांस्टेंट को क्या करे, बिल्कुल ही खत्म करे। एंगुलर मोमेंटम में सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम ओरिजिन कहां सेलेक्ट करते हैं। तो सपोज कि आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में या रोटेशन कह लें, और मेरी ओरिजिन यहां पे है, पर अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट में मैंने अगर ओरिजिन यहां से मेजर कर ली कि अब मेरी ओरिजिन क्या हो गई, यहां से, तो आप विजुलाइज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और मूव करो उसके सेंटर से और वहीं पर उस ऑब्जेक्ट को ले लो और आप उसे किनारे से मूव करो। तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा और इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो क्या होगी, दोनों कभी भी सेम नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। क्योंकि जो भी पार्टिकल से ये बना है वो किस ओरिजिन के अक्रॉस मूव कर रहा है, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट कि हम लोकेट कहां से कर रहे हैं। तो जो लोकेशन हम स्पेसिफाई करते हैं तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, अनलाइक लीनियर मोमेंटम, अनलाइक लीनियर फोर्स, वो कंप्लीटली क्या होती है, डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस r, कि अगर हम r को चेंज करेंगे तो हमारी एंगुलर मोमेंटम कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वेयर इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये एक बहुत बड़ी बात है एंगुलर मोमेंटम के बारे में कि हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहां चूज करते हैं। सो L डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एंगुलर मोमेंटम
where is a coordinate system? So L depends on the choice of कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक पॉइंट हो गई। अब दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट ये है कि जैसे हमने पहले वेक्टर्स में पढ़ रखा है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये जो आर क्रॉस पी है क्या करता है? ये एक प्लेन फॉर्म करता है। क्या करता है? ये एक प्लेन फॉर्म करता है। एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, मीन्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट जो इस तरह से मूव कर रहा है, मे बी दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जी एक्सिस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां मूव कर रहा है? ये एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है? ये एक्स जेड प्लेन में। मैं ऐसे ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एक्स में मूव कर रहा है, नहीं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस कि ये एक प्लेन फॉर्म करता है। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। मे बी इसका ओरिजिन मेरा यहां है और यहां से इसकी रेडियस है, और इस पर अगर मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ दे दी तो ये v यहां पे आ गया। तो जो L है इसका मतलब क्या होता है? L इज परपेंडिकुलर टू R एंड ऑल्सो L इज परपेंडिकुलर टू इट्स मोमेंटम। So if any object is moving like this, we say the angular momentum is in y direction, upper side में आएगा। तो यहां मेरा जी एक्सिस है, यहां मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज द आर, और ये डिस्क या मैं कहूंगा कोई पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलरली, वेलोसिटी टेंजेंशियल। सो आर एंड पी दे आर फॉर्मिंग अ प्लेन and this L will be perpendicular to this plane always. तो L is perpendicular to R, L is perpendicular to P. So in some manner कि ये जो मोशन हो रही है मेरी XZ प्लेन में हो रही है, और जो एंगुलर मोमेंटम होगा इट इज परपेंडिकुलर विच इज LY प्लेन। ओके, तो इसको अगर मैं यूं दिखाऊं कि चलो भाई इसका अगर मैं कह लूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर पी साइन ऑफ थीटा। कि ये जो आर और पी में है जो मोमेंटम है इसकी, उसमें क्या एंगल फॉर्म करता है, दैट इज द एंगल विच डिटरमाइन दिस वे। एंड आर और पी को क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको ब्रेक करूं कि आर वेक्टर है, तो मेरे को पता है कि आर जब भी वेक्टर होगा एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक पैरेलल कंपोनेंट होगा। बिकॉज क्यों? अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट है और मेरा कोई पोजीशन वेक्टर हो गया मेरे आर वेक्टर, तो एक जो वेक्टर होती है वो इस तरह परपेंडिकुलर होती है और एक जो वेक्टर होगी वो पैरेलल वेक्टर होगी। तो जब मैं आर को ब्रेक करूंगा तो एक मेरा क्या होगा? इस तरह पैरेलल जाएगा, किसके? पी के, और एक जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मैं आर परपेंडिकुलर प्लस आर पैरेलल क्रॉस पी करूं तो आर परपेंडिकुलर एंड पी मेरे को एक मैग्नीट्यूड देगा, बिकॉज दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, और ये पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो आर पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं देगा। तो L विच इज परपेंडिकुलर टू दिस गाय आल्सो, L इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू P। तो हमने इसकी दो बात देखी कि L डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑल्सो R cross P is a vector quantity and R cross P is making a plane, और जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? हमेशा इस प्लेन के जो प्लेन बनाएगा उसके क्या होगा? हमेशा एक परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा। ओके, लेट्स सी मैथमेटिकली अगर हम इसको और सिस्टमेटिक वे में देखें तो हम क्या देख सकते हैं इसके बारे में। इसके बारे में हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं लिखूं कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और मैं ये लिख सकता हूं आर क्रॉस इज इक्वल टू मे बी ए एक्स एक्स हैट, ए वाई वाई हैट एंड ए जेड जेड हैट इन जनरल, और मैं अगर P को लिखूं पी एक्स एक्स हैट, पी वाई वाई हैट एंड पी जेड जेड हैट, तो मैंने ये माना कि कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, जो मोशन ना कि कंप्लीटली एक्स में है, वाई में है
या जेड में है, मतलब एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन में है, जिस तरह से 3 डायमेंशनल कोई रोटेशन हो रहा है जो सारे की चीज़ों को कवर करता है। तो एक ऑब्जेक्ट में एक कॉम्प्लिकेटेड रोटेशंस हो रही है इन 3 डायमेंशंस। तो इसको बताना है मेरे को कि एंगुलर मोमेंटम कहाँ होगा इसका। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर क्रॉस पी लेते हैं। तो आर क्रॉस पी को हम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे एक्स एक्स, एक्स हैट, वाई हैट एंड जी हैट। आर क्रॉस पी तो हम यहाँ लेना है ए एक्स, ए वाई, ए जी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। अब इसका आप क्या कर लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एट दिस मल्टीप्लाई बाई दिस गाई, ए वाई पी जेड माइनस ए जेड पी वाई, एंड देन नेगेटिव ऑफ वाई हैट दिस गाई, ए एक्स पी जेड माइनस ए जेड पी एक्स, एंड देन पॉजिटिव ऑफ दिस गाई जी एक्सिस, ए एक्स पी वाई माइनस पी एक्स ए वाई। तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा अगर कोई एक ऐसा बॉडी जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का है और उसकी जो मोमेंटम है वो भी 3 डायमेंशनल है, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो तीनों के तीनों डायरेक्शंस में आएंगे। लेकिन अगर मैं वही कहूं कि चलो भाई ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक्स और वाई में है, जेड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ए जेड और पी जेड मैंने हटा दिया ऐसे, ये 0 0 हो गया। और जो भी इसका रेडियस है, जो भी आर पोजीशन है, वो सिर्फ लाई हो रहा है एक्स वाई में, पी एक्स, तो मोमेंटम उसका लाई होगा कहां पे, पी एक्स और पी वाई में। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है यहां। तो मे बी ये है मेरा एक्स, ये है मेरा वाई, और ये है, इस दोनों के परपेंडिकुलर आ गया जी, और ये भी परपेंडिकुलर है। ये मत समझना कि y परपेंडिकुलर नहीं, x, y एंड z, एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर। तो जब मेरा pz 0 है और az 0 है, तो ये भी मेरा हो गया 0, माइनस pz 0 az 0, ये माइनस, प्लस z हैट ax py माइनस px ay। तो मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट बचता है वो कौन सा कंपोनेंट बचता है, सिर्फ जी एक्सिस, जी कंपोनेंट बचता है। कि अगर आपके मोशन ऐसा हो रहा है कि जो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा वो किस में आएगा, जी एक्सिस में आएगा। So this is the way we analyze the angular momentum, and R cross P is forming a plane and the L is perpendicular to its plane. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंगुलर मोमेंटम की। अब इसके बाद हम इसे देखते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है उसे हम किस वे से देखेंगे। अगर ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा तो हम कैसे देखेंगे इस मोशन को। तो सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से मे बी एक मैंने पेंडुलम ले लिया, ठीक है, अब पेंडुलम को मैं इस तरह से घुमा रहा हूं, तो ये ऐसे घूमेगा, फिर एक सर्कुलर मोशन में इस तरह से आएगा। ये पूरी तरह से स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है, ठीक, ये मे बी आर डिस्टेंस है, ये जो रेडियस फॉर्म करेगा ये आर फॉर्म करेगा। तो मान लो ये मेरा एक्स है, ये मेरा क्या है, वाई है, और ये कहीं मेरा हो गया जी एक्सिस। तो ये जो प्लेन में मूव कर रहा है वो एक्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है। तो मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, इसके टेंजेंशियली होगा, P। वेरी गुड। तो अगर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां है, अगर मैंने चूज किया कि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां हो, इसमें हो, O में यहां हो, तो ऑब्वियसली यहां से देखने पर मेरे को जो L मिलेगा वो कहां मिलेगा, जो डायरेक्शन ऑफ L है वो y डायरेक्शन में मिलेगा, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन दिस एक्स जेड प्लेन। और एक्स जेड प्लेन में अगर मूव कर रहा है तो मेरे को जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा किस में मिलेगा, L y की तरफ, y डायरेक्शन में मिलेगा। बट सपोज कि मैंने इस O को यहां ना कंसीडर करके
मैंने ओरिजिन कंसीडर किया यहां पे, तब क्या हो सकता है? तब इसमें क्या चेंज आएगा? तो जब अगर मैं यहां ओ कंसीडर किया, ओरिजिन मैंने यहां कंसीडर किया, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कहां हो जाएगा? ये रेडियस स्टिल यहां रहेगा, बट इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी, अब वो पोजीशन वेक्टर यहां आ जाएगा, बिकॉज L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर कहता है कि जिस भी आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जिस भी मास को सिलेक्ट किया, उसकी पोजीशन कहां है। तो ये जो आर है वो इस वेक्टर पे आ जाएगा। नाउ स्टिल जो आपका मोशन है वो क्या हो रहा है? मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। आर और पी हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। तो आर एक आर्बिट्री डायरेक्शन में है, तो आपको पहले फॉर्म करना होगा कि आर का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। तो मेरा जो एक्सिस है वो इस तरह से है, और आर मेरा अगर यहां है तो ये तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज पी उस तरफ से है। तो ऑब्वियसली आर जो होगा कुछ इस तरफ, इस डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो इन आर और पी दोनों में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहां पर क्या होगा? L इस तरफ होगा। तो जब मेरा ओरिजिन यहां था तो L का जो डायरेक्शन था, ये जो L था वो क्या था? उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। उसकी जो डायरेक्शन थी एक तरफ मिल जाए कि L y का y है। ओके, द डायरेक्शन वॉज नॉट चेंजिंग, बट जैसे ही हमने अपने ओरिजिन को शिफ्ट किया इस पोजीशन पे, और हमने ट्रैक किया कि इसका जो इस ऑब्जेक्ट का अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देन ये जहां जहां जाएगा इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो उस हिसाब से क्या होगी? चेंज होती गई। इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अब कांस्टेंट नहीं है। पहले जब हमारी ओरिजिन यहां थी तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बिल्कुल कांस्टेंट थी कि एक डायरेक्शन में होगा, बट नाउ ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा? वो कुछ इस तरह से बनाएगा, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। तो इट्स काइंड ऑफ मेकिंग सम सर्कल, कि अब इसकी कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। फॉर एवरी वे ये क्या होगी? L क्या होगी? आपकी चेंज होगी। तो दैट इज द टू मच इंपॉर्टेंट कि हम अपनी ओरिजिन को कहां सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने ओरिजिन को यहां सिलेक्ट किया तो L हमें कांस्टेंट मिलेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट होगी। बट जैसे जैसे हमने ओरिजिन को यहां सेलेक्ट किया, देन एंगुलर मोमेंटम का जो पूरा डायरेक्शन था, एंड डायरेक्शन इटसेल्फ इज चेंजिंग, एंड दैट इज टू मच इंटरेस्टिंग। दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज सो मच इंटरेस्टिंग, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट इज आर। आप ओरिजिन को कहां सेलेक्ट करते हो? अब ओरिजिन सेलेक्ट वहां करने पर जरूरी नहीं कि आपका एंगुलर मोमेंटम जो इस ओरिजिन से मिल रहा था वो सेम होगा इस ओरिजिन की तरफ। पहले इस ओरिजिन में मिल रहा था तो मेरे को जो एंगुलर मोमेंटम मिल रहा था वो वैल्यू के साथ उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट थी, बट जैसे मैंने ओरिजिन यहां सेलेक्ट किया तो अब इटसेल्फ एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है? हर एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एंड इट्स मेकिंग सम काइंड ऑफ अ कोन। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी विथ एंगुलर मोमेंटम। देखने में ये बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स इसकी आप कर सकते हो, इजी है, but when we try to understand the behavior, try to understand the direction of angular momentum, now it's played a very crucial role because of this R factor. Well, let us understand one more thing, कि suppose कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशंस क्या है? इसी तरफ से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, सम वेलोसिटी ओमेगा, सम एंगुलर वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे यूं ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मैंने मान रखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? रिजिड है। तो ऑब्वियसली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसका जो ये पार्टिकल, अगर मैंने सोचा कि मे बी ये पार्टिकल है, दैट इज योर आर, मे बी ये क्या है? योर जेथ पार्टिकल।
क्योंकि देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स और इसकी तो पोजीशन फिक्स है, तो ऑब्वियसली ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा तो पूरे का ये जो ओमेगा है, ये जो वेलोसिटी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, वो भी क्या होगी इसकी इस ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, एल जे इज इक्वल टू फॉर जेथ पार्टिकल एम जे सॉरी आर जे क्रॉस पी जे। ओके, यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है और ये जो मोमेंटम है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। एंड नाउ वी नो दैट दिस आर जे एंड पर पी जे क्या होगा, हमारी एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि ये अगर पैरेलल हुई तो ऑब्वियसली अगर ये आर जे है, पी जे अगर पैरेलल होगी तो पी जे की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो चाहे आगे इधर निकल जाए, ये तो ऑब्जेक्ट रोटेट तो हो नहीं सकता, देयरफॉर इट मस्ट बी परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो हम लिख सकते हैं सीधे आर जे टाइम्स पी जे, और पी जे को मैं लिख सकता हूं आर जे एम जे इंटू वी जे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन आई कैन राइट हियर आर जे एम जे आर जे इंटू ओमेगा। दिस टेल्स मी एम जे इंटू आर जे स्क्वायर्ड times omega, and this is the jth angular momentum for jth particle, where rj is the distance from the axis of rotation। तो इस जगह पे rj की जो डेफिनेशन है वो मैंने कुछ डिफरेंट यूज किया। वो डिफरेंट इस तरह से यूज किया कि मैंने पहले कहा कि ये जो पार्टिकल है, ये जो r है वो क्या है, ये आपका बता रहा है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। ऐसा नहीं कि मैंने कोऑर्डिनेट यहां चूज कर लिया और यहां से मैं बोल रहा हूं आर ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो पहले आपको डिफाइन करना होगा ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, किस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। क्या वो एक्सिस ये वाला है, या कोई एक्सिस वो ये वाला है, क्या वो एक्सिस ये वाला है। और देन जब आपने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ट्रैक कर लिया एंड देन वहां से आप स्पेसिफाई करो कि आपका जो पार्टिकल है वो कौन सा पार्टिकल लोकेट कर रहे हो, डेट इज योर आर। मैंने ये आर जो लिया वो कोऑर्डिनेट से नहीं लिया कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आपकी ओ है और आपको यहां से ट्रैक करना, नहीं। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहां है और यहां से मैंने ले लिया डेट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक दिस, दैट्स ऑल। तो आर जे इज द डिस्टेंस फ्रॉम इस रोटेशन एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, वहां से कितनी डिस्टेंस है किसी पार्टिकल की। बट ये जो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है वो सम ऑफ ऑल दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, तो हम लिख सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम इज सम ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल्स। वेरी गुड। जो j इज इक्वल टू 1 से लेकर पूरा जहां तक जाना है ये जा सकता है, तो हम इसे लिख सकते हैं सम ओवर j एम जे आर जे स्क्वायर टाइम्स ओमेगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, तो ये एंगुलर मोमेंटम जो है, जो आप इसे देख रहे हो ओमेगा टाइम्स जे, ओमेगा तो ओमेगा रहेगी, आर जे स्क्वायर। नाउ दिस इज डिफाइंड एज आई टाइम्स ओमेगा, एंड नाउ दिस डेफिनेशन लीड्स मी something more interesting in rotation mechanics. Now this I, which I have defined like this, I is equal to mj times rj squared. This gives me an amazing thing which we call as moment of inertia. And this is the definition of moment of inertia. The moment of inertia will depend on the geometry of an object, कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, बिकॉज कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होगी वो जो होगा उसका जो पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मे बी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हो तो इसमें जो पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगा। देन आपने कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज कर लिया जिसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा,
तो उसके जो मासेस हैं वो कंप्लीट डिफरेंट होंगी। तो इट इज अ बिट डिफरेंट देन द सेंटर ऑफ मास, बट हमें उसी वे से क्या करना पड़ेगा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास में किया था। सो L इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ओमेगा, एंड दिस इज द टू मच अमेजिंग थिंग इन रोटेशनल मैकेनिक्स कि एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, वो है ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। तो वी विल इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल try to understand how to calculate moment of inertia for different object and what else, and if the angular momentum is also changing. For an example, there are some forces acting on the object. अभी मैंने क्या कहा था कि जो जैसे कि F इज इक्वल टू dp बाई dt था, है ना, कि अगर मेरा कोई फोर्स लग रहा है जो क्या करेगा, मोमेंटम को चेंज करेगा विद टाइम। तो उसी तरह से अगर मैं ये समझ लूं कि अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसमें किस तरह का फोर्स लगेगा जो इसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर पाए। वी विल एक्सप्लोर दोज थिंग्स इन माई लेटर वीडियोज, बट आई होप दिस इज अ वेरी क्रूशियल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड इन एंगुलर मोमेंटम, एट हाउ एंगुलर मोमेंटम चेंजेस from this definition r cross p. To solve some of the problem you have to apply also r cross p. Now if you have to find angular momentum for objects like continuous body, के बोलेगा आपको solid sphere के बारे में निकालो, hollow sphere के बारे में निकालो, what is the angular momentum, then you have to calculate this moment of inertia and then you are done. तो अगर मैं किसी तरह से ओमेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, जब कोई रोटेशन मोशन में होगा, तो ओमेगा तो जो होगी वो होगी, बट इसकी आई उस बॉडी की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी। तो आपको अगर आई पता है, देन यू डोंट हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स कि आर क्या है, पी क्या होगा, नहीं होगा, बस यू हैव टू जस्ट फाइंड दिस। और ये जो आर है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि मैंने उसके डेफिनेशन को इस तरह से लिया है कि आर और पी हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, देयरफॉर एल जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसका। तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कि सपोज कि एक आपके पास सिलेंडर है और वो मूव कर रहा है इसके आसपास, तो ऑल द पार्टिकल्स यहां से यहां से यहां सब क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इससे। आई कैन राइट दिस फॉर्मूला। मे बी इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से घुमा दिया, तो यहां से जो भी पार्टिकल है वो क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। मे बी ये मेरा एक स्फेयर है, ये क्या करेगा, ये इस तरह से मूव कर रहा है या इस तरह से मूव कर रहा है, तो जितने भी पार्टिकल्स वो क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। वो किस तरह से मूव करेंगे, देन वी अप्लाई दिस आई एंड देन यू कैन फाइंड व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। So this is all in angular momentum. I hope you understood a little bit. It's a very complex thing to understand, but yeah, it's the way I have explained you. It covers a bit more mathematical, but more elegant. I have given you all the details which involve in the understanding of angular momentum. So this is Saddam Minardo Cap signing out.